नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। और अगर आपको बता दें कि जिस तरह के आंकड़े हैं मई के महीने में, जिस तरह के ऑल टाइम हाईज हमने यहाँ पर सोने, चांदी और काफ़ी दूसरे मेटल्स में बनता हुआ देखे हैं, बाजार को ये लगता है कि ट्रेंड सीधा यहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरह के जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, जो डी डॉलराइजेशन को लेकर पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन यहाँ पर और भी जोर पकड़ती हुई नजर आई है। यूएस फेड आगे जाकर सितंबर में रेट कटौती कर सकता है। 1 या 2 रेट कटौतियां जो हैं वो बाजार ऑलरेडी यहाँ पर इसको फैक्टर इन कर चुका है। इसके साथ साथ जिस तरह के चीन की खरीदारी है, बाजार को लगता है जो खरीदारी हमने यहाँ पर रिटेल, एचएनआईज, इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आता हुआ देखी है, वो भी शायद आगे जाकर यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन अब यहाँ से सोना चांदी जिस तरह से मई के महीने में परफॉर्म कर रहे हैं, आगे का क्वार्टर यहाँ पर कैसा रह सकता है? क्योंकि आपको याद दिला दें कि जो फेस्टिवल्स हैं वो अगस्त सितंबर में आते हैं। इस बार शादियां भी यहाँ पर सेकेंड हाफ, लास्ट क्वार्टर इस कैलेंडर ईयर में हैं। तो इन सब के क्या मायने हैं सोने की खरीदारी को लेकर? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जीजेसी के चेयरमैन संयम मेहरा, साथ ही रिद्धि सिद्धि के एमडी पृथ्वीराज कोठारी हमारे साथ हैं, बावा ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ गौरव बावा एंड लाला जुगल किशोर ज्वेलर्स की डायरेक्टर तानिया रस्तोगी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का हमारे साथ स्वागत है। लेकिन उससे पहले कि हम आपसे बात करें, हम आपको सुनवाते हैं कि सोने और चांदी पर हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में मेटल फोकस के फाउंडिंग पार्टनर फिलिप न्यूमन और सिल्वर इंस्टीट्यूट के सीईओ माइकल डोरेंजियो ने सोने और चांदी के बारे में क्या कहा। Well, I think in India, we've certainly seen a pause in the past few days. And as you've seen the price in rupee terms hitting record highs around sort of the $74,000 per 10 gram level. So I think it's understandable that that buying will pause. The likes of the US and Germany, from a retail standpoint, they're still pretty weak. But when we think about the price, is it overextended? Possibly. I still think there's still room for a correction. Having said that, what we've seen over the past few months is just how well protected the downside has been. And any liquidations we've seen have certainly been very short-term in nature. And when we have seen prices dip, equally we've seen investors coming in, so those bargain opportunities coming into the market. So I think those lows have been quite well defended, and that also suggests that any weakness we may see is likely to be pretty short-lived. And especially, going to the second half of the year, if we do see a rate cut in the US, even if that's very, very few in nature, I think that would also encourage investors to come into the market as well. Yeah, silver is just really, really outperforming gold. It's almost neck and neck with copper and the base metals with respect to its performance in 2024. It broke $30 an ounce for the first time in decades. And that really is showing that there's strong demand on the investment side, on the industrial side. And as Philip mentioned, anticipation on fresh Fed rate cuts potentially coming later this year. We're also seeing a cooling of inflation data here in the United States, at least. And to add to that, we're predicting a fourth consecutive year of market deficits. We believe that silver industrial demand will hit a new peak in 2024. And, we can't overlook the geopolitical tension that's taken place across the world. And you put on top of that all these elections that are taking place across the world, and especially here in the United States. How will that impact the gold and silver prices? ऑलराइट, तो वो मेटल फोकस और सिल्वर इंस्टीट्यूट के पैनल की तरफ से आया हुआ कि यहाँ से और तेजी बाजारों में देखने को मिल सकती है। कोठारी जी, आपसे पहले यहाँ पे जानना चाहेंगे, जिस तरह से फिलिप न्यूमैन हमें बता रहे थे कि डाउन साइड प्रोटेक्टेड है, गिरावटें आएंगी, करेक्शन आएंगी, लेकिन वो छोटी होगी और बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होगी, यानी कि हर डिप पर यहाँ पर खरीदारी देखने को मिलेगी और वो इन्वेस्टर्स से, इंस्टीट्यूशनल बायर से यहाँ पर देखने को मिलेगी और हर चीज़ यहाँ पर खरीदारी करते हुए आगे और तेजी दिखा सकती है। किस तरह से आप देखते हैं जिस तरह से सोने ने इस साल चाल पकड़ी है, और अब बाकी के ये साल को आप किस तरह से, किस रेंज में मनता हुआ देखेंगे? क्योंकि जो डे टू डे वॉल्टिलिटी है, अब बाजार उसको काफी हद तक नजरअंदाज कर रहा है। मार्केट्स अब ये जानना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इन सम सेंस कि यहाँ से अब किस तरह की चाल रह सकती है। थैंक यू मनीषा जी।
देखिए अभी जो सीनेरियो जो अगर आप देखोगे तो जो सीनेरियो लास्ट 2 साल से 2-2.5 साल से आफ्टर द कोविड जो चेंज हुआ है उसमें काफी हद तक चेंज हो गया है। आपने देखा होगा कि लास्ट 2 साल मिड ऑफ 2022 से सेंट्रल बैंक की बाइंग 3-fold बढ़ गई है कंपेयर टू द 21-22। तो एक तो सेंट्रल बैंक की बाइंग कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही है जिसके अंदर जैसे इंडिया चाइना तो नो डाउट है ही है, उसमें पोलैंड है, कतर है, इन लोग भी गोल्ड को बाय कर रहे हैं। सेकंड चीज होती है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन ज्यादा है, उस हिसाब से भी लोग अभी सैंक्शन लगने का डर रहता है। जैसे वेनेजुएला पे सैंक्शन लग गया, ईरान के ऊपर सैंक्शन है, रशिया यूक्रेन का देखने के बाद में काफी कंट्री को ऐसा लग रहा है कि हम लोग कभी ना कभी कुछ ना हो तो अनसेफ है। तो उनका झुकाव एक गोल्ड की तरफ ज्यादा हो गया है कि हम डॉलर में नहीं रख के उसके अगेंस्ट में हम लोग उसको गोल्ड में रख के। और दूसरी चीज रहेगी कि जो लोग जैसे पोर्टफोलियो के अंदर जो गोल्ड है वो सबसे ज्यादा अभी बाइंग हो रही है। स्मार्ट इन्वेस्टर है, पोर्टफोलियो में गोल्ड बढ़ रहा है तो उनको पोर्टफोलियो में और उसको ऐड ऑन करते जाते हैं, तो कहीं ना कोई बेचने को तैयार नहीं है। आप देखोगे तो मार्केट एकदम स्क्वीज हो गई है, शॉर्ट साइड के अंदर कोई है नहीं है, माइंस बेच नहीं सकता है प्राइस में, उनको बेचने का मन होता है बट वो कांट शॉर्ट कर नहीं सकते हैं क्योंकि M2M और मार्जिन का इश्यू रहता है। और फिजिकल डिमांड जो नो डाउट है जहां पे रुक जाती है वहां पे सेंट्रल बैंक्स की बाइंग आ जाती है। और उसके बाद में अगर आपने देखा होगा तो कि गोल्ड में इतनी डिस्पैरिटी मार्केट के अंदर नहीं है, फिर भी अगर प्राइस 2350 के आसपास आता है तो फिर एक बाइंग स्टार्ट हो जाती है। और एक बार जब कॉस्टिंग आ जाती है, बाइंग स्टार्ट होने लगती है, तो फिर इंपोर्ट भी स्टार्ट धीरे धीरे इंपोर्ट स्टार्ट होने लग जाता है। तो नो डाउट है प्राइस को लोगों ने धीरे धीरे डाइजेस्ट कर दिया। अब 2000-2100 बहुत दूर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो काफी दूर हो गया है, बट जबकि ये लास्ट 3 और 4 मंथ बिफोर 2000 के नीचे गोल्ड था। तो इस तरह का वातावरण है, पूरा अनसर्टेनिटी है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, यूएस इंटरेस्ट रेट। अभी यूएस इंटरेस्ट रेट कट का बात होती है वो बहुत थीन हो गई है। अब उसका इफेक्ट मार्केट पे उतना इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि न्यूज ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, उसका न्यूज भी उन्होंने डिस्काउंटेड ऑलरेडी कर दिया है। तो मार्केट में शॉर्ट सेल जो लोग शॉर्ट में है, मैं वही कहता हूँ कि उस मार्केट से दूर रहे, लॉन्ग सिल्वर में, और लॉन्ग भी जितना माल बिकता है उतना बाय करे क्योंकि बाजार किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है क्योंकि सेलिंग प्रेशर है नहीं है, एकदम स्क्वीज हो गया है। 100, 200, 500 कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाजार $10 बढ़ जाता है, $10 नीचे आ जाता है। मतलब वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर काफी ज्यादा रहेगी, तो इससे मार्केट को काफी हद तक, आपने सिल्वर देखा होगा तो $30 जैसे क्रॉस नहीं होता, $30 क्रॉस होने के बाद में इन सेम डे 160-70 सेंट बढ़ गया था। तो इस तरह की मार्केट के अंदर टोटली अनसर्टेनिटी है। जी हाँ, एब्सोल्युटली। और अगर सोने की बात की जाए तो इस साल में इवन एज डॉलर तेजी पे था, इक्विटी बाजार ऑल टाइम हाइज बना रहे थे, रेट कटौती 5 होगी, 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी, मार्केट को कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा है कि सोने अपने हायर हाइज बना के वहां पर उसके ऊपर यहाँ पर खड़ा हुआ है। सही, हम आपसे जानना चाहेंगे और एक प्राइस को पहले आउट ऑफ द वे यहाँ पर कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कहाँ जा सकते हैं इस साल में प्राइसेस, दिवाली तक, इस साल के अंत तक आप किस रेंज के साथ काम कर रहे हैं? देखिए $2418 है, अभी 74 के आसपास MCX रेंज में चल रहा है। प्राइस मुझे लगता है कि अभी थोड़े टाइम के लिए स्टैग्नेंट रहेंगे, 100-200 रुपया ऊपर नीचे हो सकते हैं, 2450 से 2350 तक की रेंज रह सकती है। लेकिन साल के जैसा दिवाली के आसपास ये भाव वापस $2700 to $2800 के आसपास आ जाएगा और भाव भी 78 to 80,000 के करीब हम टेस्ट लेवल कर देख सकते हैं। सितंबर के अंदर फेड रेट्स हैं वो घटते हुए एक बार देख सकते हैं, लेकिन उसकी न्यूज डिस्काउंट होने के बावजूद एक उसके होते ही 7 डेज 10 डेज के अंदर काफी अच्छी तेजी का देखने को मिलेगी। जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस हम देख रहे हैं, अभी ईरान के अंदर भी जो जैसे उनके प्रेसिडेंट की हुई थी जिस टाइम पर हेलीकॉप्टर क्रैश, उसके टाइम पर $10 to $20 बढ़ा, लेकिन जब पता लगा कि ये कोई नॉर्मल तरीके से टेक्निकल एरर की वजह से हुआ तो वापस भाव रिड्यूस हो गया। तो ये सब चीजें जो हैं जियोपॉलिटिकल टेंशंस इजराइल की, ईरान की, रशिया के अंदर अभी भी चल रही है। और जिस तरीके से उन्होंने देखा कि यूएस ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा के जितना भी उनके पास जितने डॉलर पड़े थे वो उनको कुछ अभी ऐसा कोई काम के नहीं रहे, उसी तरीके से चाइना भी अभी क्या कर रहा है कि गोल्ड की बाइंग स्पीड से कर रहा है। शंघाई के अंदर जो प्रीमियम्स हम देख रहे हैं वो हिसाब से ऐसा लग रहा है कि भाव जो $85 के, $70 का जो अभी चल रहा था बीच में प्रीमियम्स $35 तक आया, 8% ऊपर सिल्वर के प्रीमियम्स चल रहे हैं। वो सबको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि गोल्ड अभी भी अगर $25 to $30 की मंदी आए तो ठीक है, वरना एनी टाइम बाइंग की पोजीशन में रहेंगे तो ही आगे आने वाले टाइम के अंदर फायदा है। और बाइंग भी मार्केट के अंदर अक्षय तृतीया के टाइम पर अच्छी रही और अभी थोड़ा 5-6 दिन से थोड़ी कम है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे 10 डेज 12 डेज के बाद वापस
शादी की बाइंग जो 3 महीने 4 महीने बाद शादियां आएंगी, उसकी बाइंग धीरे धीरे चालू हो जाएगी। कोठारी जी, मैंने आपसे प्राइसेस नहीं पूछे, आपको क्या लगता है इस साल के अंत तक किस तरह की रेंज रहेगी सोने में? देखिए मैडम, मैं एक बात बताना भूल गया था कि आपने देखा होगा कि लास्ट अपना लंदन का वेयर हाउसेस के अंदर आप देखो तो कॉन्स्टेंटली गोल्ड और सिल्वर ऑलमोस्ट 30% फिजिकल मूवमेंट हुआ है। मतलब उन स्टॉक में से 30% डाउन हो गया है। सीएमई का भी स्टॉक आप देखोगे, कंपेयर करिए तो उसमें भी 30% कम हुआ है। एसपीडीआर ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ देखेंगे तो उसमें भी आप ऑलमोस्ट 30% रिड्यूस हुआ है। मतलब फिजिकल माल को स्क्वीज होते जा रहा है, धीरे 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 माल वो सेफ एंड में पार्क होते जा रहा है। और गोल्ड गोल्ड के जैसे आप प्राइस की बात कर रहे हो, तो प्राइस मेरे हिसाब से अराउंड मे बी 2600 गोल्ड ऑन अपसाइड लग रहा है दिसंबर तक, और डाउन साइड 23, 2285 का एक सपोर्ट है। वो लेवल पे अगर आता है और मार्केट उसके बाद में अगर बंद होती है 2285 तो नीचे का दौर होता है। बाकी मुझे लगता है कि 26 तक मार्केट जाना चाहिए, और रूपी टर्म्स में 78 to 80,000 है रूपी, और ड्यूटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका क्या इफेक्ट इस पे आता है। और 78 to 80,000 नो डाउट। अभी भी ऐसा भी आप कॉस्ट देखोगे इंक्लूडिंग जीएसटी है तो अबाउट 76,000 तो ऑलरेडी प्राइस हो गया। तो 82,000 गोल्ड आराम से मुझे दिख रहा है, और डाउन साइड में भी 70,000 इंक्लूडिंग जीएसटी। ऑलराइट, तो ये जो स्ट्रक्चरल तेजी है, डायरेक्शनल तेजी है, यहाँ पर बरकरार रह सकती है। गौरव, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से सोने के भाव इस साल के अंत तक कहाँ जाएंगे? नमस्कार जी। सो गोल्ड के प्राइसेस की अगर हम बात करें तो मुझे तो ऐसा लगता है वी शुड सी समवेयर अराउंड 85,000 टू 90,000 बाय द एंड ऑफ द ईयर। बट वो प्राइसेस आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी आई पर्सनली सी के गोल्ड के प्राइसेस इंटरनेशनली अगर हम देखते हैं तो दे आर मूविंग अबव 4-day मूविंग एवरेज। तो जब तक वो प्राइस को डिप करके नीचे क्लोज नहीं देगा बिलो 18 आई वुड से, तो करेक्शन भी कोई बहुत ज्यादा नहीं आएगा इसके अंदर। एंड अल्टीमेटली इट इज इन अ नो मैन्स लैंड एरिया आई वुड से, कि वो प्राइसेस हैं जो आज तक कभी किसी ने देखे ही नहीं है गोल्ड के अंदर, इंटरनेशनली भी और इंडियन रूपी वैल्यू के अंदर। सो आई डोंट थिंक देयर इज गोइंग टू बी मच डाउनसाइड ऑन गोल्ड, और वोलेटाइल ही रहेगा ओवरऑल। ओके, इट इज गोइंग टू बी रियली वोलेटाइल। यानी कि 80, 82, 85 तक भी यहाँ पर लेवल देखने को मिल सकते हैं। तान्या, आपका क्या सीन सेंस है? क्योंकि एक बार सोने के प्राइसेस पे बात कर लें, उसके बाद हम खरीदारी पे आएंगे। देखिए मनीषा जी, मैंने पिछले साल दिवाली पे ये वाला नंबर बोला था 80,000 आपके भी चैनल पे, और हम लोग इसी तरह से हंसे थे। और देखिए अब वी आर हियर, वी हैव अराइव्ड। सो आई थिंक कि 80,000 इज वेरी एक्सपेक्टेड। जो आपने बोला कि मार्केट फैक्टर इन कर लेता है जो फेड की स्पीच, बट द पॉइंट इज कि फेड का पहले 4 रेट कट्स था। इट हैज बीन मिक्स्ड सिग्नल थ्रू आउट द ईयर। तो अगर आप देखें तो जो फैक्टर इन है वो यूजुअली 60% से 65% के आसपास फैक्टरिंग इन रहती है। तो जब एक्चुअल रेट कट आएगा उस टाइम पर जो हम लोग देखें, एंड देखिए इधर की तरफ मार्केट के फंडामेंटल्स भी कुछ पिछले कुछ इंसिडेंट्स में आपने देखे होंगे थोड़े से हिल रहे हैं, कि एक ही टाइम पे डॉलर भी बढ़ रहा था और एक ही टाइम पे गोल्ड भी बढ़ रहा था। उसके रीजंस यही हैं कि द सेंट्रल बैंक, ऐसे जैसे कहा पहले कोठारी जी ने, कि सेंट्रल बैंक्स हैव बीन वेरी बिग बायर्स सिंस 2022। तो अभी सोना बढ़ते हुए में भी आई डोंट थिंक दे विल स्टॉप बाइंग गोल्ड, बिकॉज गोल्ड ही जो ऐसा चीज है कि वो क्रेडिट नहीं है, बाकी सब क्रेडिट है, और डीडॉलराइजेशन का माहौल तो है ही। So I really feel कि we should easily see 80,000 by Diwali this year, and that will specifically happen after the first rate cut, which will about actually happen when it happens. यानी कि तेजी यहाँ पर सोने और चांदी में बरकरार रहेगी, और एक स्ट्रॉन्ग लेग अप हम आता हुआ देखेंगे जब पहला रेट कट यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर शायद वो सितंबर के आसपास ही उसके बाद हो। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन जब लौटेंगे तो बात यही करेंगे कि भारतीय बाजार में अब खरीदारी किस तरह की है, क्या ट्रेंड्स देखने को मिल सकते हैं। अगर हम ये सोच चुके हैं कि भाव यहाँ से और ऊपर जाने ही हैं, तो खरीदार इन लेवल्स में क्या करें और कैसे अपने आप को हेज करें, कैसे इन्वेस्ट करें, इस पर करेंगे बात। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारे साथ सोने चांदी की चाल, जो कि तेजी में बरकरार रह सकती है आगे जाते हुए भी। सही, हम आपसे जानना चाहेंगे कि तो बाइंग किस लिहाज से है, क्योंकि बाजार मान रहा है कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर लोग खरीद रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल बाइंग है, ईटीएफ में खरीदारी अच्छी खासी हमने आते हुए देखी है। जो बड़े एचएनआईज हैं वो भी सोने चांदी में जम के खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन जहां तक रिटेल का सवाल है वहां पर किस तरह के नंबर्स बनते हुए देखेंगे? देखिए रिटेल के अंदर जो अगर आप पूछेंगे अप्रैल के अंदर तो जो फिगर्स थी वो अच्छी थी। मई के अंदर भी जो आप देखेंगे लास्ट ईयर से 5% कम था बिजनेस अक्षय तृतीया के टाइम पे, लेकिन फिर भी आप देखेंगे वैल्यू वाइज तो वैल्यू टर्म्स के अंदर लास्ट ईयर के मुकाबले में उतना ही था। 20-22 टन के आसपास की सेल्स आई। अभी भी जो हम देख रहे हैं इतनी बाइंग मार्केट के अंदर नहीं है। इसका कारण एक भी है कि अभी छुट्टियां हो गई हैं, गर्मी बहुत है,
और उसके अलावा रेट्स इतने हाई लेवल के ऊपर हैं, शादियां 3 महीने बाद हैं, तो लाइट वेट ज्वेलरी जो है वो ज्यादा सेल्स हो रही है अभी। जो ओपनिंग्स लोगों ने प्लान की हुई थी, काफी शोरूम्स की ओपनिंग हो रही है ये साल और अगले साल के अंदर अंदर। आप देखेंगे इंडिया के अंदर 2000 से ऊपर शोरूम्स की ओपनिंग होगी, तो उसके लिए स्टॉकिंग चल रही है। लोग बाइंग कर रहे हैं, बैंक से गोल्ड बाय कर रहे हैं, उसके स्टॉकिंग करके आगे कर रहे हैं ताकि आगे आने वाले 3 महीने की तैयारी इसके अंदर हो जाए। मुझे लगता है कि जो आने वाले 12 से 15 दिन बाद जो शादी की बाइंग है वो चालू हो जाएगी, जिसके अंदर हेवी ज्वेलरी है। ऐसा नहीं है कि गोल्ड के रेट्स बढ़ गए हैं, यानी कि 75,000 करीब हो गए हैं तो हेवी ज्वेलरी बिकनी बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी। जिसको आज भी हेवी ज्वेलरी की डिमांड है, अच्छी तरह से हेवी ज्वेलरी उन्होंने अप्रैल के अंदर बाय की है, वापस जून जुलाई के अंदर शादी के फेस्टिवल के लिए। और जो मिलेनियल्स हैं जिनका फेवरेट लाइट वेट रोडियम, रोज गोल्ड, डायमंड के छोटे पेंडेंट है, उसकी बाइंग ऑलरेडी है। जहां तक HNIs है, ETFs, डिजिटल गोल्ड के अंदर भी अच्छी बाइंग है। आज भी आप अगर हर रिटेल शोरूम के पास डिजिटल गोल्ड का कॉन्सेप्ट है, जहां पर आप 100 मिली से 200 मिली 1 ग्राम तक भी बाइंग कर सकते हैं, और जब आपका साइजेबल अमाउंट हो गया उसको ज्वेलरी के अंदर एनकैश करा सकते हैं। तो काफी अच्छा मॉड्यूल है, काफी अच्छा सिस्टम चल रहा है। और पिछले साल की तरह ये साल भी 750 से 800 टन की इंपोर्ट होगी, मतलब इतनी सेलिंग डोमेस्टिक मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है बाजार। गौरव, आप कैसे देखते हैं अगर प्राइसेस इस लिहाज से बढ़ते रहे तो एज अ ज्वेलर, एज अ रिटेल, आप कैसे इस मार्केट को देखते हैं और क्या कुछ आप करेंगे? ओके, गौरव के पास यहाँ पर फिर जाने की कोशिश करेंगे। तान्या, आपसे वही सवाल, कैसे देखती हैं आप खरीदारी और क्या कुछ चेंजेस आप करेंगे एज अ रिटेल अगर प्राइसेस इसी तरह बढ़ते रहे तो? इस बार अक्षय तृतीया पे मैं आपको शेयर करना चाहूंगी कि अगर हम लोगों ने जो नया चीज देखी, यूजुअली क्या होता था कि वेडिंग सीजन आने वाला होता था, वेडिंग की बहुत बाइंग देखते थे। इस बारी वो स्मॉल टोकन का भी बहुत बाइंग हुआ, जो लाइट वेट ज्वेलरी होता है उसका काफी बाइंग हुआ। दिस इंडिकेट्स दैट पीपल आर वांटिंग टू, मतलब जितना भी अवेलेबल डिस्पेंसेबल इनकम है उसको वो कन्वर्ट करना चाहते हैं गोल्ड में, तो गोल्ड का एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। सो उसको देखते हुए एंड बढ़ते हुए प्राइसेस को देखते हुए, देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ मनीषा जी आपके शो पे कि बढ़ता हुआ गोल्ड इज नेवर बैड। वो सेल हमेशा बढ़ती है बढ़ते हुए सोने से, बट थोड़ा टाइम लगता है, वो एक्सेप्टेंस आना चाहिए रेट का। तो आई फील सिंस रेट्स और बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है और सीजन आने वाला है, अदर देन द हेवी ज्वेलरी हम लोग इस बार लाइट वेट ज्वेलरी पे भी अच्छी स्टॉकिंग करेंगे अक्रॉस द इंडस्ट्री। अगर आप देखें तो मोस्ट ब्रांड्स हैव लॉन्च्ड स्पेसिफिक कलेक्शंस जो सेलिब्रेट करते हैं वर्किंग वुमेन, लाइट वेट ज्वेलरी, 9 to 5 ज्वेलरी, ऐसा करके। तो वही वाला चीज इस टाइम सेक्टर है जो इस टाइम सबसे ज्यादा रीस्टॉकिंग ले रहा है अक्रॉस माय इंडस्ट्री। ऑलराइट, यानी कि तेज़ी यहाँ पर बरकरार रह सकती है, लेकिन जिस तरह की नए प्रोडक्ट्स यहाँ पर हम बाजार में आता हुआ देखेंगे, और जैसे काफ़ी क्लियरली कहा भी गया कि सभी के लिए कुछ ना कुछ है, और बढ़ते बाजार में हमेशा हम देखते हैं कि सोने की खरीदारी बढ़ती हुई नजर आती है। लेकिन एक और चीज़ कोठारी जी जो लगातार चढ़ती रही है, चांदी, और आपने इनिशियली कहा भी कि $30 फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एक रेजिस्टेंस था, एक बार वो टूटा तो 32.5 बहुत जल्दी आता हुआ नजर आया। अब यहाँ से, और जैसे माइकल कह भी रहे थे सिल्वर इंस्टीट्यूट से कि यहाँ से भी तेज़ी बरकरार है, उनको लगता है कि जो बढ़त आई है ये सिर्फ आधी तक ही हुई है, यहाँ से उतनी ही तेज़ी और एक्सपेक्टेड है। आप कैसे देखते हैं चांदी के प्राइसेस को और भारतीय बाजारों में चांदी की खरीदारी को? देखिए, मैं इंटरनेशनल प्राइस की अगर बात करें तो चांदी की अभी जो बढ़त हुई है वो अभी शुरुआत हुई है मैडम। जो $30 का एक ब्रेक था वो ब्रेक हुआ, अब ये शुरुआत है स्टेज में। ये आप इसको देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी 1 गोल्ड में थी और सेकंड क्रिप्टो करेंसी सिल्वर में है। जिस हिसाब से क्रिप्टो का आप देखेंगे जो बाजार बढ़ रहा है, 70,000 प्लस कल हो गया था, 72 के आसपास हो गया। तो मुझे लगता है सिल्वर की ये शुरुआत है। यहाँ पे सिल्वर आपको $34 भी दिख सकते हैं। अगर 34 ब्रेक हो जाता है तो $50 भी आप सिल्वर को देख सकते हैं, क्योंकि अभी इसके अंदर लोग क्रिप्टो जो करेंसी के जो फंड जो होती है, आप देखो $2.61 ट्रिलियन क्रिप्टो की वैल्यू हो गई है। $2.61 ट्रिलियन टोटल क्रिप्टो की आज वैल्यू है। तो आप सोच सकते हो कि सिल्वर और गोल्ड की उसके सामने कुछ भी नहीं है। अगर वो चाहे तो थोड़ा भी इसमें डाइवर्सिफाई, क्रिप्टो 2 हो गया, मतलब बिटकॉइन 1 गोल्ड था, बिटकॉइन 2 हो गया है सिल्वर अभी। तो सिल्वर की मेरे हिसाब से $30 के आसपास अगर वापस भी आ जाता है तो बाइंग लेवल सबसे बेस्ट रहेगा। और ये 34 के ब्रेक हो गया तो उसके बाद में 36, 38, 40, $50 तक भी सिल्वर इजीली जा सकती है, जो ऑल टाइम हाई था 49, 50।
राइट, तो 49.50 तक जा सकती है। और जी हाँ, मैं कोठारी जी, मैं हेक्ला माइनिंग के सीईओ से बात कर रही थी। उनका भी मानना है कि $40 तक चांदी वो देखते हैं। सिल्वर इंस्टीट्यूट का मानना है कि चांदी आधी है और यहाँ से डबल होने की एक्सपेक्टेशन वो रखते हैं आने वाले 2-3 सालों में। तो क्लियरली जोरदार तेजी की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर भी है। एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो हमने देखा है संयम की, इवन एज प्राइसेस यहाँ पर भागे हैं, इनकैशमेंट्स और स्क्रैप हमने बहुत ज्यादा बाजार में आता हुआ नहीं देखा। नहीं, देखिए प्राइसेस ऊपर जाने के बाद पहले एक ट्रेंड होता था कि लोग आके अपनी पुरानी ज्वेलरी बेचते थे, पुराना सिल्वर को एनकैश करते थे। लेकिन अभी वो टाइम खत्म हो गया। एक टाइम पर ऐसा था कि जब शोरूम्स बोलते थे कि अभी हमारे पास कैश फ्लो नहीं है, कैश हमको वापस देना पड़ रहा है सब कस्टमर्स को, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाव बढ़ने के बाद अभी भाव वापस घटेंगे। ये अभी मार्केट के अंदर नहीं है। 150 टन ईयर के अंदर ऐसा होता है जो रिसाइकल होके वापस ज्वेलरी बनता है, वो जरूर हो रहा है। ज्वेलरी वापस बन के आ रही है, लेकिन कस्टमर्स के माइंड में आ गया है कि 2026 के अंदर गोल्ड जो है वो 1 लाख के करीब होगा और सिल्वर जो है वो 1,50,000 के करीब होगा। जो 2011 के अंदर $49 के आसपास आया था सिल्वर, वो लेवल अभी वापस टेस्ट करेगा। ये साल के एंड तक 120-125 लाख रुपीस सवा लाख हो जाए जी सिल्वर हाँ। हो जाएगा और चांदी भी गोल्ड भी उसी तरीके से बढ़ता जाएगा। तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा क्रिएशन हो गया है एंड कंज्यूमर्स के अंदर दोनों कमोडिटी पे। जी हाँ, जब सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हों और एचएनआईज खरीद रहे हों, इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हों, तो फिर रिटेल का तो पार्टिसिपेशन यहाँ पर आना लाजमी ही है। और जैसे कहा गया कि सोना यहाँ पर $2700-2800 इस साल के अंत तक दिखा सकता है, यानी कि 80,000 के लेवल्स, उसके ऊपर के ही लेवल्स आप इस साल के अंत तक आता हुआ देखेंगे। जहाँ तक चांदी की बात है, ज़्यादा बुलिशनेस यहाँ पर है। चांदी हल्की सी अंडर वैल्यूड रही है यहाँ पर सोने के मुकाबले, जिस तरह की गोल्ड सिल्वर रेशियो भी है। ऑफकोर्स इसको हमने 80 के नीचे अब आता हुआ देखा है, लेकिन बाजार को लगता है, सजेशंस यही है कि यहाँ से और खरीदारी भी देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे लिए समय निकालने के लिए और सोने, चांदी, ज्वेलरी और खरीदारी पर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।